Hello everyone, welcome to NetJRF Economics Simplified. So as part of our PYQ series, today we'll be taking up the next set of PYQs from the December 2025 paper. So let's get started. So the first question is basically asking you to find out the range of this particular function. So इसका मतलब क्या है कि आपको y की possible values बतानी है कि y की जो values हैं वो किस range में fall करेंगी, right? तो अब जब आपको y की वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको x की पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी क्योंकि जब आपको y को सॉल्व करना है सो you'll have to put the all the possible values of x which are there, right? उसको आप इस फंक्शन में डालोगे, उसके बाद जो भी फंक्शन की वैल्यूज आएंगी they will correspond to the values of y and उससे आपको रेंज मिल जाएगी. Okay, so let's do that. अब what is this function basically saying? Y is equal to fx equal to रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करना है. ठीक है, अब आपको बताना होगा कि x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जो आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे एंड देन यू गेट द वैल्यूज ऑफ y. तो जब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखते हैं, what do you understand from it? This is of the kind of square root कि कोई expression है which is inside the square root, उसको solve करना है आपको. तो जब भी कोई square root के फॉर्म में आपको फंक्शन दिया है उससे एक चीज तो आपको क्लियरली पता है कि whatever expression you have inside the function, here in this case it is 1 minus x square, right? 1 minus x square जो फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, you know that this expression needs to be positive, right? इसको एक नॉन नेगेटिव वैल्यू देनी होगी in order for this function to be valid, right? आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म तो हो ही नहीं सकती, right? तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं है तो आपको x की वो वैल्यूज निकालनी है जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो एक पॉजिटिव वैल्यू ले. ठीक है, तो अब ये कब पॉसिबल हो सकता है? 1 minus x square should be basically greater than 0, right? ये होना चाहिए आपका. और ये कब पॉसिबल है? For what values of x? When x falls in the range -1 to +1, right? मतलब क्या वैल्यूज हो गई? -1, 0 and +1. ओके, ये अगर वैल्यूज x लेता है, if x takes these values, then definitely this particular function, this particular expression 1 minus x square will be a positive value. ठीक है, आप वो करके भी देख सकते हो. If you put 1 here, if you put -1 here, in any case square है तो वो 1 ही बन जाएगा. You will get either 0 or you will get 1 inside the square root. ठीक है, तो ये आपका एक positive expression बनाएगा. So x should fall in this particular range in order for your function y, this value to be valid. It should be positive. Square root के अंदर जो value है वो positive होनी चाहिए and that is only possible when x takes up these values, right? इस range में हो which is corresponding to these three values. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब because you have to find out the value of y, आपको range बतानी है इस function की, so you will have to put each of these values of x in this particular function in order to derive or in order to find out the value of y. ठीक है, अब हम एक एक करके करते हैं. Let's put -1 first. y की वैल्यू क्या होगी when x equal to -1? You put it in this function. 1 minus x square की मैं वैल्यू डाल रही हूँ -1 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप. 1 minus this will give you 1, right? In the square root this is 0. Okay, next is y, you put 0. Now x is equal to 0. So you put this value in the function. What do you get here? You get 1. Okay. Now you put x equal to 1 in the function. When you do that, you get this which is again 0. तो इससे आपको क्या वैल्यूज मिल रही है y की? You are either getting 0 or you are getting 1. ये भी 0 है. तो what does it basically tell you कि जो y की वैल्यू है it falls in the range 0 and 1. ठीक है, तो इससे आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है it turns out to be correct. I hope you understood it. जब आपको y की रेंज निकालनी है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज निकालनी है,
तो उसके लिए सबसे पहले आपको x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, कीपिंग इन माइंड कि फंक्शन क्या है, ठीक है। जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो वैलिड रखती हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को, आपको वो वैल्यूज निकालनी है पहले x की। फिर उसके बाद वॉट एवर वैल्यूज यू गेट, यू पुट ईच ऑफ दोज इन द फंक्शन, ठीक है। उससे आपको y की जो वैल्यूज मिलेंगी, दे विल बेसिकली डिसाइड द रेंज इन विच योर फंक्शन विल लाई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। Okay, so we come to the next question. This is talking about rational expectations theory, ठीक है। अब rational expectations theory ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब आप मैक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रैशनल एक्सपेक्टेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब इस थ्योरी के बारे में हम थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो हु गेव दिस थ्योरी, ये पहला क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, जॉन एफ मूथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। जॉन एफ मूथ वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट who gave this particular theory, ठीक है। ये थ्योरी उन्होंने दी है and who was the one who made it popularized. popularized किन्होंने किया था, वो थे रॉबर्ट ल्यूकस, ठीक है। a very very important economist again, रॉबर्ट ल्यूकस, he was the one who popularized this theory, ठीक है। इन्होंने पॉपुलराइज किया था। अब व्हाट डज दिस थ्योरी बेसिकली से, इस थ्योरी में बोला क्या गया है, तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी इट बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ अ पर्सन, हाउ एन इंडिविजुअल इज मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। वो एक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के बारे में बात की गई है कि हाउ इज अ पर्सन, हाउ इज एन इंडिविजुअल फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें जो एक इंडिविजुअल है, दैट पर्सन इज मेकिंग हिज डिसीजंस बेस्ड ऑन all the relevant plus available information, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन उस इंडिविजुअल के पास अवेलेबल है एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट और रेलेवेंट है, उस सारी इंफॉर्मेशन को वो लेगा, कंसिडर करेगा, एंड देन ओनली दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गोइंग टू कम टू अ डिसीजन। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दैट पर्सन इज गोइंग टू गो फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग wherein he or she is taking into consideration all the relevant information, जितनी भी information available, and what for is this decision being made, it is being made about economic variables, ठीक है। आपके economic variables जो भी होते हैं, for example let's say inflation हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट्स हो गए, कि how are they going to change, what is their trajectory going to be in the future, उसके रिगार्डिंग आपको अगर डिसीजन मेकिंग करनी है, यू टेक ऑल द रेलेवेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू कंसिडरेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी, योर डिसीजन मेकिंग इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड्स, ठीक है। ये नहीं कि जो पीछे पहले जितना जो चल रहा था उसके बेसिस पे, पास्ट के बेसिस पे ही आप कोई डिसीजन पे आओगे, नो, यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक ऑल द करंट इंफॉर्मेशन इनटू कंसिडरेशन। एक रैशनल डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। सो बेसिकली रैशनल डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पास्ट ट्रेंड्स को ही नहीं देखा जाएगा, ऑल द करंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो अब लेकिन एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरी, जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, डेफिनेटली यू आर टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू कंसिडरेशन, all the decisions that are being made are rational in nature, but at the same time आप ये नहीं बोल सकते कि जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो टोटली एरर फ्री है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि डिसीजंस आर एरर फ्री। सो डिसीजंस आर नॉट एरर फ्री। अब बेसिकली क्या होता है कि there are certain errors, you know, some errors are unavoidable in nature, no matter how much you try, उनको आप avoid कर नहीं सकते हो। तो इसमें जो errors होते हैं, they are basically unbiased errors होते हैं, जो
आने ही होते हैं, मतलब ड्यू टू सम और द अदर रीजन वो आ जाते हैं. सो दे आर क्वाइट रैंडम इन नेचर एंड अनबायस्ड, सो टू से. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली नॉट एन एरर फ्री वे ऑफ कमिंग टू अ डिसीजन. सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि इंफॉर्मेशन आप सारी ले रहे हो, बट एरर फ्री होने का जो एक वो है वो आप रूल आउट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इस थ्योरी के बारे में पता होनी चाहिए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ लेट्स कम टू द स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू अबाउट रैशनल एक्सपेक्टेशंस. मैंने नॉट पे इतना एम्फेसाइज क्यों किया, जब आप एग्जाम में होते हो एट दैट टाइम आप ऑब्वियसली यू आर इन अ हरी, आप बहुत जल्दी में होते हो, समटाइम्स यू ऑल्सो टेंड टू पैनिक. तो इस वजह से यू टेंड टू मिस आउट सर्टेन थिंग्स इन द क्वेश्चन. ठीक है, आप उसको जल्दी जल्दी में पढ़ते हो और आप ये जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि वेदर यू हैव टू फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. कभी कभार इनकरेक्ट लिखा होता है, आप उसको करेक्ट अज्यूम करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो. ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं कि वहां पे पूछ रहे हैं नॉट ट्रू बताना है और आपने अज्यूम कर लिया कि आपको बताना है कि विच वन इज ट्रू और विच वन इज करेक्ट. सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड इट वेरी वेरी अटेंटिवली. ठीक है, इनफैक्ट आप माइंड में कहीं पे आपको जो अगर रफ शीट मिली है, इफ यू टेंड टू फॉरगेट इट, आप वो नोट बना लो जल्दी से कि आपसे पूछा क्या गया है, बड़ा बड़ा लिख लो. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है. ओके, व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड बाय हैंसन. ये हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा हुआ है. जॉन एफ मूथ was the American economist who gave this particular theory, who developed this particular theory. So in that sense हमें पता चल चुका है कि not true, तो मतलब this statement cannot be true, right? So एक तरीके से we know the answer that first statement should be the right answer, but still मैंने आपको बताया है even if you have come to the answer पहली statement में या initially पता चल गया है, do go through the rest of the statements as well. ठीक है, आपने हल्का सा रीडिंग जरूर माननी है. ओके, so what does the second statement say? It is used in decision making by households, firms, labor for making their expectations about relevant variables. That's what we studied. ठीक है, second statement जो हमने यहाँ पे लिखी है, second characteristic of this particular theory हमने पढ़ा है, उसमें यही चीज बात की जा रही है. So second statement is correct. Now rational expectations uses all relevant information. Again that can be derived from the second statement itself. Right, हमने जो भी पढ़ी, that's exactly what's happening. And fourthly, it is not an error-free expectation. मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पे decisions लिए जाते हैं, you cannot rule out that all the decisions are error-free. वो नहीं होते हैं, there are some chances of errors in any way. ठीक है, तो इस हिसाब से which is the statement that is not true? The first one. The first statement is not true because this theory was given by John F. Muth. Okay. This is rational expectations theory. I'm giving this as a note to you because I will be sharing this PPT in the Telegram channel. So आपके लिए ये annotated form में ही होगी, आप download कर सकते हो वहाँ से, so that you have some sort of notes या revision के लिए if you want to use it. Okay. So we come to the next question. Now this question is again a assertion reason type. तो फर्स्ट स्टेटमेंट assertion क्या कहती है, इफ x and y are any two variables and are transformed to the new variables u and v defined by this okay, where a, b, h, k are any constants and h and k are greater than 0, basically which means that they are positive, and r x y equal to r u v, then basically आपको ये बताना है कि ये चीज स्टैंड करती है कि नहीं, ये ट्रू है कि नहीं कि r x y equal to r u v. You have to basically tell about this. ठीक है, पहले मैं ये statement we have to basically understand this. Let's read the reason statement also for greater clarity. Correlation coefficient is independent of change of origin and scale. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. So r क्या है यहाँ पे, it is correlation coefficient. ठीक है, अब correlation क्या होता है, what is correlation? What is correlation? Correlation is basically a measure which tells you about the strength and direction of relationship, direction of linear relationship, right? Direction of the linear relationship between two variables. That is what correlation is, है ना? तो अब ये जो correlation coefficient है वो उसका आपको measure देता है.
ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि x एंड y ये दो कोई भी आपके टू वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इन दोनों वेरिएबल्स पे आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर दी, ठीक है। उन ट्रांसफॉर्मेशंस को करने के बाद आपको दो नए वेरिएबल्स मिल गए विच आर u एंड v, ठीक है। अब जिन वेरिएबल्स को यूज करके उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है उनकी आपको एक जनरल सा आइडिया दे दिया गया है कि a b h k दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एंड u का इन्होंने क्या बताया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, x माइनस a बाय h, एंड व्हाट इज v बेसिकली y माइनस b बाय k। अब उन्होंने ये चीज भी बता दी आपको कि h और k जो हैं दे आर ग्रेटर देन 0 विच मीन्स दे आर पॉजिटिव्स। सो आपका ये जो है बेसिकली बिकॉज दे आर इन द डिनोमिनेटर तो ये आपका होल्ड करता है, दिस इज अ वैलिड एक्सप्रेशन, दिस इज बेसिकली टू टेल यू दिस, ठीक है। अब आपको बेसिकली बताना है कि ये पर्टिकुलर चीज होल्ड करेगी कि नहीं, कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y वेरिएबल का था, जब वो उनको ट्रांसफॉर्म करके इन दोनों वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करके आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर जो भी कैलकुलेशन है, जब u एंड v आपको मिले तो उन वेरिएबल्स का भी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज ऑफ x एंड y, ठीक है। ये आपको बेसिकली बताना है वेदर इज ट्रू और नॉट, ठीक है। तो अब जब आप ये पढ़ते हो तो इसमें एक प्रॉपर्टी है विच कम्स इनटू द पिक्चर विच विल बेसिकली हेल्प यू फिगर आउट वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है विच इज एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी है दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज ऑफ स्केल। अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, ये मैंने पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज दिसंबर 2025 का जो एनालिसिस है उसके पार्ट 1 में भी ये टॉपिक डिस्कस किया था। वी डिड दैट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दैट, बट एक जनरल सा मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ थोड़ा अच्छे से मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू आई एक्सप्लेन्ड, बट यहाँ पे मैं आपको बिकॉज वी हैव टू सॉल्व इट हल्का सा बता रही हूँ। जो ओरिजिन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है उसमें प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, इन द सेंस कि कोई कांस्टेंट टर्म में अगर आप कुछ एडिशन कर रहे हो कोई वैल्यू का या कुछ सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या चेंज होगा। और जो स्केल होता है दैट इज इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म और डिविजन कि कुछ आप कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें या डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो उससे उस पर्टिकुलर फिगर पे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, यहाँ पे जैसे हम r की बात कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, उसमें हम sd की बात कर रहे थे, तो विल दैट बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट चेंज और नॉट, ठीक है। तो जब आप कोएफिशिएंट कोरिलेशन की बात करते हो, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हो, तो इन दैट केस वी से दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ स्केल बोथ। मतलब आप प्लस माइनस करोगे या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, दोनों में जो आपका वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इवन व्हेन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो अगर x और y को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू u एंड v, तब भी दोनों का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो सेम होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है, दे विल बी इक्वल। सो इन दैट सेंस ये प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर इट, इन दैट सेंस यू वुड नो कि ये वाला फर्स्ट वाला जो आपका असर्शन स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट, ठीक है। एंड रीजन क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, वी हैव अंडरस्टूड इट, दैट इज हाउ वी बेसिकली डिराइव्ड इट। इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, and because you are able to derive it from the second reason statement that basically justifies कि assertions जो statement दी गई है उसका reason ही ये है, and that's the correct explanation. So what is the answer? Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A, which is statement, which is your option 1. ठीक है, I hope you understood it. Let's move to the next one. Okay, so our third question for today's lecture, it basically has given you certain bodies, ठीक है, ये आपकी कुछ बॉडीज दी गई हैं, सेबी, जीएसटी, काउंसिल, नीति आयोग, आरबीआई। अब आपको बताया गया है कि बेसिकली आपको बताना है कि ये किस टाइप की बॉडी है,
whether it's advisory, whether it is statutory. So इनको आपको बताना है कि ये करेक्ट उन्होंने मैच किया हुआ है, मैच करके ऑलरेडी दिया है, तो करेक्ट बताया है कि नहीं बताया. दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल. ठीक है, तो लेट्स डू इट वन बाय वन. अब सेबी आपको पता है व्हाट इज सेबी. सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए. जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसकी पूरी रेगुलेशन जो है सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो सेबी इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, इट इज नॉट एडवाइजरी इन नेचर, इट इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? यस, यू शुड नो. अब स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सो दे आर लीगल बॉडीज. ठीक है, दे आर लीगल इन नेचर, दे हैव द बैकिंग ऑफ द लॉ. एक पार्लियामेंट के लॉ से उसको बनाया गया है. एंड व्हाट इज दैट लॉ इन दिस केस? सेबी के केस में इट इज द सेबी एक्ट ऑफ 1992. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. सेबी एक्ट ऑफ 1992 के अंतर्गत इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था, सेबी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो इन दैट सेंस आपका ए स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, सेबी इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज जीएसटी काउंसिल. ठीक है, जीएसटी काउंसिल की अब हम बात करेंगे. अब जीएसटी काउंसिल को इन्होंने बोला कि इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. नो, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, अब नाउ व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज अ बॉडी बेसिकली जिसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका बेसिकली एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल के थ्रू उस पर्टिकुलर बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल देते हैं. ठीक है, स्टैट्यूटरी में क्या होता है? लॉ ऑफ द पार्लियामेंट होता है. जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इट इज मेड बाय एन एक्ट, इट इज मेड बाय एन आर्टिकल which has been inserted into the constitution of the country. ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 279A. ठीक है, ये आर्टिकल का नंबर भी आपको याद होना चाहिए. आर्टिकल 279A से आपका जीएसटी काउंसिल फॉर्मुलेट हुआ है. इन दैट सेंस योर सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सेकेंड वाला जो आपको बी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, सो नाउ वी कम टू द थर्ड वन. थर्ड वन इज नीति आयोग. अब नीति आयोग के बारे में यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑलरेडी. नीति आयोग क्या है? नीति आयोग इज बेसिकली अ थिंक टैंक. आपको पता है ना, इट्स अ थिंक टैंक. व्हाट इज अ थिंक टैंक? थिंक टैंक इज बेसिकली अ बॉडी दैट इज प्लेइंग अ एडवाइजरी रोल. ठीक है, अब जो स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दोनों को नीति आयोग जो है एडवाइस देती है ऑन वेरियस इश्यूज ऑफ नेशनल कंसर्न. ठीक है, जो नेशनल कंसर्न के इश्यूज हैं उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं. ठीक है, थिंक टैंक है, वो रिसर्च करते हैं एंड दे गिव एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं फॉर द सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, तो बेसिकली आपको नीति आयोग के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इट इज समथिंग दैट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री. ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट्स जो हैं, डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में एक हार्मनी को लेकर आना, एक सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन को एनकरेज करना, स्ट्रेंथन करना. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हेन यू टॉक अबाउट नीति आयोग. ठीक है, एक चीज और, ये कब फॉर्मुलेट हुआ था? 2015 में, ये आपने याद रखना है. एंड हाउ डिड इट कम अबाउट? देयर वाज सम बॉडी व्हिच वाज देयर बिफोर इट. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था. नीति आयोग बेसिकली रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग एंड देन दिस पर्टिकुलर बॉडी केम अबाउट. ठीक है, सो व्हाट नीति आयोग इज डूइंग? इट्स बेसिकली अ एडवाइजरी बॉडी. ठीक है, इट इज एडवाइजरी बॉडी. सो सी वाला जो आपका है वो करेक्ट हो गया. अब आपको थर्ड वाले की बात करनी है विच इज आरबीआई.
the Reserve Bank of India, the central bank of our country. तो RBI is again a statutory body. ये किस एक्ट से बनी है ये आपको पता होना चाहिए. RBI Act of 1934. ये आपने याद रखना है. It was formed even before the independence. Even before the independence of a country, RBI जो है वो फॉर्मुलेट हो गया था. अब एक चीज मैं आपके लिए ट्रिविया बोल रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए. एंड यू नेवर नो, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, और मे बी और किसी पर्टिकुलर एग्जाम में तो आया भी है जिसमें इकोनॉमी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज एन एक्टिविटी दैट आई एम गिविंग टू यू, ठीक है. आरबीआई को पहले क्या बोलते थे? What was RBI called initially? Before becoming RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका नाम इंडिपेंडेंस के बाद पड़ा, ठीक है. जब ये पर्टिकुलर एक्ट आया था उस समय आरबीआई का नाम वो समथिंग एल्स. तो वो जो पहले उसका नेम था वो आपको मुझे फाइंड आउट करके बताना. आरबीआई का पहले नेम, जो इनिशियल फर्स्ट नेम जो था वो क्या था? You have to find that out and put that in the comment section. ठीक है, this is an exercise for you. It is for your own well-being. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये आ सकता है क्वेश्चन. So in that sense आपका राइट क्या हुआ? C and D are correct, which means fourth is the right option. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आएंगे. Okay. Now this is a match the following type. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है. अब जब आप कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, राइट, तो जैसे कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, सो यू फॉर्मुलेट सर्टेन हाइपोथेसिस इवन बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट. आपको एक होता है कि यू विल गिव सर्टेन स्टेटमेंट्स कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द रिजल्ट, व्हाट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस यू वुड गेट, राइट. तो उसके हिसाब से आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, राइट. तो अब जब आप ये करते हो, फॉर्मुलेशन करते हो या कोई टेस्ट को आप इवैल्यूएट करते हो, तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स, ठीक है. तो अब एरर्स जो होते हैं ब्रॉडली दो टाइप के हैं. टाइप 1 एरर, ठीक है, एंड टाइप 2 एरर. अब इसमें आपको बेसिकली बताना है टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू मैच योर कॉलम्स. टाइप 1 एरर क्या होता है बेसिकली, कि आपने जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है, नल हाइपोथेसिस, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया इवन व्हेन इट वाज ट्रू, ठीक है. इसमें क्या होता है, दैट यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस even when it was true, ठीक है. तो इसको हम एक और नाम देते हैं विच इज फॉल्स पॉजिटिव. ये आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस, कि जब हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो हाइपोथेसिस था, नल हाइपोथेसिस था, वो एक्चुअल में ट्रू था, ठीक है, वो एक्चुअल में ट्रू था, बट बिकॉज ऑफ द एरर दैट केम इन द प्रोसेस उसको आपने रिजेक्ट कर दिया. अब इसका मैं आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. अब लेट्स से कोई ड्रग है, ठीक है. ड्रग के ट्रायल्स होते हैं. जब कोई भी साइंटिस्ट नई ड्रग को बनाते हैं, दे हैव टू बी फर्स्ट टेस्टेड कि उसकी एफिकेसी कितनी है, वो इफेक्टिव है भी कि नहीं उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जिसके एराडिकेशन के लिए वो बनी है, ठीक है. तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं. अब लेट्स से कि वो ड्रग वाज बेसिकली नॉट इफेक्टिव, ठीक है. आपने जो टेस्ट किया उसमें ये निकला कि दैट द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव, बट बिकॉज ऑफ द एरर यू हैड कम टू द कंक्लूजन कि द ड्रग इज इफेक्टिव. उस पर्टिकुलर एरर को हम कहते हैं टाइप 1 एरर, ठीक है. आपको समझ आया? हाउ रिस्की कुड दैट बी? टाइप 1 एरर इज सो वेरी रिस्की. मतलब जो चीज इफेक्टिव, जो ड्रग इफेक्टिव नहीं है, मेडिकल साइंसेज में तो यू कांट बी मेकिंग एरर्स लाइक दिस. इट कुड हैव ह्यूज रेपरकशंस फॉर द पॉपुलेशन एट लार्ज, राइट. कि एक जो ड्रग है जो एक्चुअल में इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस एरर, टाइप 1 एरर, आपने अज्यूम कर लिया कि वो इफेक्टिव है एंड देन यू मेक योर मतलब फाइनल जो भी उसके आपने लॉन्च करनी है उस पर्टिकुलर ड्रग को. सो दिस कैन बी हाईली रिस्की. सो दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है. अब टाइप 2 एरर क्या होता है? टाइप 2 एरर में क्या होता है, दैट यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस when it is false.
मतलब अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो एक्चुअल में फॉल्स है, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो, इसका अदर नेम हो गया फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, इसका हो गया फॉल्स नेगेटिव, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव, यू मस्ट रिमेंबर दैट। सो इन दैट सेंस आपका टाइप 1 जो एरर है वो किससे मैच होगा? You are going to reject the hypothesis when it is true. So A is going to be matched with 3 and type 2 error which is B is going to be matched with 1 except the null hypothesis when it is false. अब हम बात करेंगे simple and composite hypothesis की। Simple hypothesis and composite hypothesis। ठीक है, अब simple hypothesis क्या होता है? Simple hypothesis is the one in which your parameters, all the parameters are defined. ठीक है, parameters जो होते हैं आपके सारे parameters, be it variance, correlation, जो भी हैं, they are defined. ठीक है, वो सब defined है, which means that there is no unknown parameter. आपके जो parameters हैं, they are not unknown. They are all defined. ठीक है, no unknown parameters. Wherein composite जो hypothesis है उसमें आपको एक range होती है, एक range of values दी गई होती है। ठीक है, range of values होती है। तो this basically means कि आपके जो parameters हैं उनमें variability हो सकती है। It might vary, they might vary because आपकी range है। So in that range, those parameters can fall in any, it can take any value, right? Variability होती है and they could be also unknown. Some of them could also be unknown. ठीक है, variability भी होती है और unknown भी हो सकते हैं parameters, right? Composite hypothesis में. So with this particular understanding, let's match them. Simple hypothesis, यहाँ पे आपको दिया है कि mean is equal to mu naught, ठीक है, and your variance is this. Defined values दी गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोर्थ वाले में that your this is what your H naught is saying, your null hypothesis, आपको mean की defined value दी है but your variance sigma square is unknown. ठीक है, when it is unknown it is a composite hypothesis and when all your values are known it is a simple hypothesis. ठीक है, तो इस सेंस में let's match it, let's take the right option. A is matched with 3, B with 1. Okay, and then your C is being matched with 2. Okay, so you come to the third option, C with 2, D with 4. Okay, so third option is the right option for this particular question. Let's move to the next. This particular question is from development economics because it's talking about the big push theory. ठीक है, big push theory is again a very important concept in the development economics. अब इसके बारे में हम general सा overview पहले ले लेंगे कि big push theory क्या है, what does it talk about. ठीक है, तो big push theory जो है ये दी किसने थी आपको पता होना चाहिए. Who was the one behind it? It was Rosenstein-Rodan. ठीक है, he was an economist and he was the one who gave this particular theory. ठीक है, अब इस थ्योरी में बोला क्या गया था. ठीक है, तो इस थ्योरी में बात ये की गई थी कि जो आपकी अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमीज होती है, दी अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमीज, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि आपकी वहाँ पे इनकम जो होती है वो लो होती है. व्हेन योर इनकम इज लो, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी लो हो जाएगी, लो इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली जो अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमीज होती हैं उसके लिए रोजेनस्टीन रोडान ने ये बोला कि दे आर ट्रैप्ड इन अ लो लेवल इक्विलिब्रियम. ठीक है, एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप होता है. ये वाली कंट्रीज जो हैं, जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये उसमें फंसी हुई है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ विशियस साइकिल. एंड व्हाट इज दैट विशियस साइकिल? लो इनकम, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन भी लो होगी, प्रोडक्शन लो होगी तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दैट विल टेक अ हिट. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक अ हिट, पॉवर्टी होगी, and this particular cycle is going to continue.
ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर साइकिल इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर, ये एक विशियस साइकिल की तरह चलती रहेगी, एंड दैट इज बिकॉज दीज पर्टिकुलर कंट्रीज आर ट्रैप्ड इन दिस लो लेवल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो व्हाट डिड रोजेनस्टीन रोडान से, व्हाट डिड द बिग पुश थ्योरी से, कि अगर किसी भी कंट्री को, अगर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को आपको इस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से निकालना है, इफ यू वांट टू टेक देम आउट ऑफ दिस, तो आपको एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा. क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट को लगाना पड़ेगा, विच बेसिकली मीन्स कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड दैट इन्वेस्टमेंट मस्ट क्रॉस अ पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड. ये नहीं कि आप इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, छोटी छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे नहीं होगा. If the economy has to be taken out of this trap, you will have to make a lump sum investment. You will have to give a big push. You will have to give a big push to the economy. एक big push देना पड़ेगा economy को in order to bring it out of the low level equilibrium trap. उसके लिए आपको large investment करनी पड़ेगी. You will have to make large investment, and उसके लिए government intervention becomes extremely important because it is the government which is going to make this investment, right? तो जो बिग पुश थ्योरी है, इसने इसकी बात की कि आपके जो स्मॉल इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स विल नॉट डू द वर्क, यू विल हैव टू मेक अ बिग पुश, एंड दैट शुड बी मोर देन दैट क्रिटिकल मिनिमम. जो एक थ्रेशोल्ड है उससे ज्यादा होना चाहिए, उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना चाहिए. ओनली देन विल द इकोनॉमी बी एबल टू मूव ऑन द ट्रैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो आपकी जो बिग पुश थ्योरी है टॉक्ड अबाउट दिस. सो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओरिजिन ऑफ बिग पुश थ्योरी के बारे में बताना है. सो फ्रॉम आवर डिस्कशन यू वुड ऑलरेडी नो कि दिस पर्टिकुलर थ्योरी ट्रेसेस बैक इट्स ओरिजिन टू द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप एंड क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट. इस थ्योरी पे अब एक चीज और, ये पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी थी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट तो आपको पता होना चाहिए, ये लाइबेनस्टाइन ने दी थी. ठीक है, लाइबेनस्टाइन. जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आगे ये पूछा जाएगा और पूछा जा चुका है पहले भी, एंड दी टेंडेंसी टू बी आस्क्ड अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वो फिर से हो सकती है, इट्स वेरी हाई, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए. सिमिलरली अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैल्डर्स ग्रोथ लॉज, हैरेट्स नाइफ एज इंस्टेबिलिटी, all of these are extremely important, right? Especially Harrod's model. Harrod's model is extremely important. ये इकोनॉमी के be it UGC और any other exam जो आपके competitive exams होते हैं उनके लिए this particular theory is very very important. Harrod's model is extremely important. In fact, all are very important. You have to go through them all. ठीक है, आप पढ़ोगे इनके बारे में. So the right option is 2. Okay, I hope you have noted it. Now we move to the next one, which is talking about King demand model. अब किंग डिमांड मॉडल जो है ये आपकी ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें आता है, उसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर मॉडल की बात की जाती है. ठीक है, ओलिगोपोली क्या होता है? इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स. ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है? देयर इज ओनली वन सेलर, राइट? मोनोपोली में एक सेलर होता है, ओलिगोपोली में देयर आर फ्यू सेलर्स. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर मेनी. ठीक है, आपकी मार्केट होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, कंपटीशन इज हाई इन दैट केस. ओलिगोपोली में देयर आर फ्यू सेलर्स, राइट? अब हम किंग डिमांड मॉडल की बात कर रहे हैं. ठीक है, किंग डिमांड मॉडल जो है ये दिया किसने है? किंग डिमांड मॉडल इट वाज गिवन बाय पॉल स्वीजी. ओके, किंग डिमांड मॉडल वाज गिवन बाय पॉल स्वीजी. ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस पर्टिकुलर मॉडल में बात किस चीज की गई थी? तो दिस पर्टिकुलर मॉडल बेसिकली टॉक्स अबाउट प्राइस रिजिडिटी. ठीक है, इसमें प्राइस रिजिडिटी की बात की है, ये आपको याद रखना है. इस मॉडल में प्राइस रिजिडिटी की बात की गई है, एंड इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है विच इज अ किंक. इसका जो डिमांड कर्व होता है इस पर्टिकुलर मॉडल में उसमें किंक होता है. That's a very important characteristic, and this is so important that the entire model is named after this king, and that's why it's called king demand model. That is basically the reason behind it. King demand model में किंक होता है उसके डिमांड कर्व में. What does that basically mean? कि एक जो आपकी रेंज बन जाती है, जो आपका डिमांड कर्व होता है
उसमें एक रेंज बन जाती है, जो ये आपका किंक आता है यहाँ पे, ठीक है, उस किंक से ऊपर आप नहीं प्राइस अपना इंक्रीज कर पाते हो. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इट बिकम्स डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. ओके, एंड एक गैप क्रिएट हो जाता है उसमें. अ गैप इज क्रिएटेड which basically means that no matter what your marginal cost is, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो इस गैप में मूव कर सकता है. इट माइट वेरी. मार्जिनल कॉस्ट इस गैप में बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. ठीक है, बट नो मैटर व्हाट योर कॉस्ट इज, योर आउटपुट एंड योर प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज. नॉट गोइंग टू चेंज. आपको समझ आया ये बात? What happens is that king demand curve में price rigidity होती है, wherein your marginal revenue curve it turns discontinuous. There is a gap which is created in that. अब उस gap में आपकी marginal cost कितना भी vary कर ले, no matter what your marginal cost is, your output and the price is not going to change. ठीक है, आपका price बिल्कुल नहीं change होगा, and that is why this model is talking about price rigidity. ठीक है, अब if I go into details, diagrams and everything, this will take a lot of time because it is a very extensive one and a very important model indeed for all the economy related exams. This is very very important, right? तो आपने king demand model को पढ़ना है, and from this particular explanation, whatever we understood, let's answer the question now. King demand model was developed by which of the following? Economist का नाम बताना है आपको, and you know that it is Sweezy, right? Paul S. Sweezy is the economist who basically formulated this particular model. And बाकी के जो economist के नाम दिए वो भी बहुत important है, ये आपको पता होना चाहिए. चेम्बरलिन जो है वो basically monopolistic जो markets हैं, monopolistic competition उससे related है. बर्ट्रैंड एंड स्टैकलबर्ग ये दोनों भी बेसिकली ओलिगोपोली मार्केट से रिलेटेड है. उनके उन्होंने जैसे स्वीजी ने मॉडल दिया किंग डिमांड, सिमिलरली स्टैकलबर्ग एंड बर्ट्रैंड आर आल्सो गिवन मॉडल्स फॉर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, राइट? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एंड किंग डिमांड मॉडल हैज टू बी स्टडीड इन डिटेल. ओके, सो यू विल डू दैट. नेक्स्ट वी कम टू अनदर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन. अब इसमें आप देखोगे लिस्ट 1 में आपको फाइनेंस कमीशन दिए हुए हैं, ठीक है, फिनेंस कमीशन दिए हुए हैं. एंड लिस्ट 2 में आपको बताना है कि ये इन्होंने कितना टैक्स डेवल्यूशन किया था, ठीक है. यू हैव टू मैच देम बेसिकली. तो अब आपको पता होना चाहिए कि फिनेंस कमीशन जो है उसका बेसिकली काम क्या होता है कि they have to tell कि what percentage of the total tax receipts that the government gets, that the central government is getting, उसका कितना percentage it is going to share with the states. What percentage of it is going to be given to the states, ठीक है. This is what the finance commission tells. वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती है, ठीक है. ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्लेस की जाती है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था इन वेयर यू हैड टू टेल वेदर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज दैट, वेदर इट्स स्टैट्यूटरी, वेदर इट्स एडवाइजरी. सो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए. यू माइट गेट दिस क्वेश्चन एज वेल. एंड अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो देयर मस्ट बी सम आर्टिकल दैट रेफर्स टू दिस पर्टिकुलर बॉडी. ये आपको फाइंड आउट करना है. You have to find this out and you have to share your answer in the comment section. This is extremely important. ये कुछ bodies हैं which are like very very important, extremely important when it comes to economics. अभी अब financial economics की बात करते हैं तो ये कुछ बहुत ज़्यादा important bodies हैं. तो इनके जो article numbers हैं, GST Council का मैंने आपको बताया 279 है. Finance Commission is extremely important जब आप center state relations की बात करते हो. इसका article आपको पता होना चाहिए. So if you are writing long answers जो आप mains जैसे exams में लिखते हो, in that you have to quote the article. You can't be writing simply finance commission. You have to make a quote of the article. Which article of the constitution does it correspond to? You have to start your answer itself with this particular explanation. तो article number पता होना is very important and I would stress कि आप इसको याद रखोगे. And this is the activity that you are going to do today in addition to the one that I gave you previously. आपने इस article number को निकालना है and you are going to give mention that in the comment section. ठीक है. अब finance commission
कमीशन जो होता है ये डेवल्यूशन करता है, ठीक है, ऑफ द फंड्स, राइट। परसेंटेज के साथ आपको इसको मैच करना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द 14th फाइनेंस कमीशन, जो आपका फर्स्ट वाला ए वाला है, 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी रिगार्डिंग टैक्स डेवल्यूशन, इट वाज 42%, ठीक है, 42% उन्होंने करने के लिए कहा था। तो ये बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए, कितना टैक्स डेवल्यूशन बोला गया था, ये बेसिक रिकमेंडेशन है, आपने याद रखनी है। ये आप बेसिक जो आपकी न्यूज़पेपर्स भी होते हैं उसमें भी एक हेडलाइन बन जाती है, इवन बजट्स में, इन चीज़ों में, इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है, राइट। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होते हैं। देन 15th फाइनेंस कमीशन जो है, 15th फाइनेंस कमीशन की थी 41%. Now this was also very highly debated and talked about in the newspapers. आप अगर न्यूज़पेपर को भी रेगुलरली पढ़ते हो तो ये वाली टाइप की चीजें जो हैं, इसके लिए आपको एक्सटेंसिवली एक अलग सोर्स को नहीं उठाना। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन इटसेल्फ इज गोइंग टू सफाइस। उसमें ये बहुत हाईली डिबेटेबल था कि 42% से 41% हमने कम क्यों कर दिया, when the states are asking for even greater share in the tax devolution, right? तो ये क्यों किया गया था, ये आपको इसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट डिड द फाइनेंस कमीशन से, मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने ये बोला था कि 15th फाइनेंस कमीशन के टेन्योर के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो थी, जम्मू एंड कश्मीर वाज प्रीवियसली अ स्टेट, राइट, उसको हमने यूटी बना दिया था, ठीक है। व्हेन डिड दैट हैपन, इट हैपेंड इन 2019। जम्मू एंड कश्मीर से जो स्टेट थी पहले, उसको हमने लद्दाख की एक यूटी और JNK जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। इट हैपेंड इन 2019, ठीक है। तो ये बिकॉज द स्टेट वाज टर्न्ड इनटू अ यूटी एंड दिस पर्टिकुलर टैक्स डेवल्यूशन इज हैपनिंग फॉर स्टेट्स बेसिकली। तो उस वजह से फाइनेंस कमीशन ने बोला वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस डेवल्यूशन बाय 1%, बिकॉज एक स्टेट कम हो गई है, ठीक है। तो 42 से वो 41% रह गया, राइट। अब हम 12th फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। 12th फाइनेंस कमीशन का कितना था, 30.5%, एंड 13th फाइनेंस कमीशन का था 32%, जो टैक्स डेवल्यूशन का शेयर उन्होंने रिकमेंड किया। तो ये वाली लिस्ट आपने याद रखनी है, ओके। द इंटायर थिंग हैज टू बी रिमेम्बर्ड एंड उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ, 14th with this one, okay, 15th with this, 12th with this and 13th with this. So that is A2, B1, C4 and 13th is matched with 3, okay. So this turns out to be your right answer. अब एक चीज और है, इन सारे फाइनेंस कमीशंस के जो चेयरपर्सन्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इनफैक्ट दैट वाज आस्क्ड इन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो चेयरपर्सन्स भी आपको पता होने चाहिए एंड आपको ये भी पता होगा कि 16th फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुकी है, राइट। 15th फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी आ चुकी है आफ्टर जो 16th Finance Commission has already been launched, right? 15th Finance Commission has already given its recommendations. Now the 16th Finance Commission has come into play, ठीक है। तो इन सब के चेयरपर्सन आपको पता होने चाहिए and this is another thing, 16th Finance Commission because it has already come into the picture. अब आपके जो आगे के एग्जाम्स हैं UGC में, उसके जो 16th Finance Commission पे क्वेश्चंस आने के चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू अनदर एक्टिविटी, इसके आपको चेयरपर्सन का भी नाम पता होना चाहिए एंड यू आर गोइंग टू फिगर दैट आउट, ठीक है। दिस इज अनदर एक्टिविटी दैट आई एम गिविंग टू यू। आप कमेंट सेक्शन में ये भी शेयर करोगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। आप जब कोई चीज को खुद करते हो, when you put in efforts yourself, वो चीज आपकी मेमोरी में ज्यादा जल्दी रजिस्टर होती है, you are able to recall things better, ठीक है। एंड when you put, you know, when you actually google it, आप देखते हो उसको, you just see those things and when you write them down yourself, you know, दोनों में भी difference है। So you have to make sure, and that's the reason why people have to make notes. That's something that I tell them always, my students, कि आप सिर्फ किसी चीज को ये मत सोचो कि आपने पढ़ लिया, सुन लिया, हो गया। You have to write that down, ठीक है। खुद के अपने notes बनाओगे, when you do that, your revision becomes extremely easy. Right before the exam, it's not possible to go through each and every page of the book, right? उस समय आपके हाथ में जो handy notes होते हैं, जो आपने खुद अपनी language में बनाए होते हैं, they become extremely important, right?
बहुत अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट राइट बिफोर द एग्जाम जब आपके पास टाइम कम होगा एंड यू हैव टू रिवाइज सो मच, देन यू विल कम टू नो. सो आपने ये नोट्स खुद बनाने हैं एंड राइट दैट डाउन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, रजिस्टर इट इन योर हेड. जो भी आप ये एक्टिविटीज मैं आपको दे रही हूँ, यू हैव टू डू इट, not for the sake of anybody else but for your own self, right? So I hope you understood this particular question. Let's move to the next. So इस question में you have to basically tell which of these production functions is exhibiting a decreasing returns to scale. ठीक है, अब इस particular question में आपको returns to scale का concept पता होना बहुत जरूरी है. returns to scale क्या होता है? returns to scale का concept, what does it say? So returns to scale is basically telling you how is your output going to change. How is the output going to change when the inputs are scaled up proportionally. मतलब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से जब आप अपने इनपुट्स को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर रहे हो, तो उससे आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिटर्न्स टू स्केल से आपको पता चलता है. अब रिटर्न्स टू स्केल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, you have decreasing returns to scale and you have constant returns to scale. अगर जो आपका आउटपुट है, the proportion by which it is increasing is greater than the proportion by which the inputs is increasing, then it is increasing returns to scale. ठीक है, अगर the output is increasing by a proportion which is less than the proportion at which the inputs are increasing, तो it is decreasing returns to scale. ठीक है, and when we talk about constant returns to scale, उसमें the proportion is equal. The proportion by which the output is increasing and the proportion by which inputs are increasing, they both are equal. तो उसको हम constant returns to scale बोलते हैं. अब आपको इधर बताना है कि ये फंक्शन में से कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एग्जिबिट करता है. तो अब ये कैसे करेंगे? So when you have to find that out, you have to basically see the exponents. ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपोनेंट्स पे फोकस करोगे. जो आपके इनपुट्स हैं, यहाँ पे इनपुट्स क्या हैं? 2 इनपुट्स हैं, वन इज कैपिटल एंड द अदर वन इज लेबर. जो इनपुट्स हैं उनके आपने एक्सपोनेंट्स देखने हैं. ठीक है, यू हैव टू सम द एक्सपोनेंट्स. If the sum of your exponents is greater than 1, then it's increasing returns to scale. If the sum is less than 1, then it is decreasing returns to scale. And if the sum is equal to 1, then it is constant returns to scale. ठीक है, अब इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. जब आप फर्स्ट वन देखोगे तो k में जो आपका एक्सपोनेंट है वो 1/4 है एंड लेबर का क्या है? 1/2. ठीक है, बिकॉज रूट ओवर इज बेसिकली एक्सपोनेंट की फॉर्म में हाफ. तो जब आप इनको ऐड करते हो 1/4 प्लस 1/2, व्हाट डू यू गेट? You get 3/4. 3/4 is less than 1, which means decreasing returns to scale. So in that sense आपको समझ आ गया है that your first option is the correct one because you have to find the decreasing returns to scale. तो आपको फर्स्ट वाले से आंसर तो बेसिकली मिल चुका है अपना. बट आई वुड ऑलवेज अर्ज यू कि आप बाकी भी गो थ्रू करोगे बिकॉज इन द एग्जाम लाइक सिचुएशन, एग्जाम कंडीशन में आपका जो आपका सिचुएशन होती है दैट्स वेरी डिफरेंट from when you are answering your questions at your comfort level, when you are at a home or any place where you are at comfort, as at ease. So that's very different. So exam situation mein the tendency of making a wrong decision, a wrong judgment is very high. ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी में ना करो, instead go through all the statements, all the questions so that you can be very very sure about the answer that you are picking up. ठीक है, तो बाकी जो आपके statements हैं 2 में आप देखोगे k की अल्फा है एंड l की 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा विच इज 1. दिस इज व्हाट? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बिकॉज इट इज इक्वल टू 1. थर्ड वाले में क्या है? k की भी 1 है एक्सपोनेंट एंड k की भी 1 है एंड आई एम सॉरी ओके लेट्स गेट बैक. k की भी 1 है and
L की भी 1 है, so that gives you 2 which is increasing returns to scale, right? अब fourth में क्या है, K is half, right? And L is 3/2, right? तो half plus 3/2 आपको क्या देगा, 4/2 which is 2, right? Again it is increasing returns to scale. ठीक है, तो आपके बाकी के भी आपको मैंने समझा दिए. सो बेसिकली आपकी एक एक्सरसाइज भी हो गई, सो दैट आपको समझ आ जाए कि आपने ऐसे और क्वेश्चंस आए तो कैसे करने हैं. ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया कि this is the process through which you are going to figure out what kind of returns to scale a particular expression is, a particular production function is exhibiting. So इसके लिए आपका right answer हो गया answer number 1, option number 1 for this particular question. Moving to the next one. अब आपको probability का question दिया गया है, आपको event A की probability दी हुई है यहाँ पे. Probability of event A is 1/5, probability of event B is 1/3, and you have been told that A and B are two mutually exclusive events and you have to find out the probability of neither A nor B will occur. ठीक है, ना तो A event हो रहा है ना B event हो रहा है, ये वाली चीज की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है, तो अब एक चीज आपको मैं बताऊं, ये जो पर्टिकुलर उन्होंने चीज दी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, द सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी. A and B are two mutually exclusive events. Mutually exclusive मतलब A and B जो हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है. देयर इज नथिंग विच इज बेसिकली ओवरलैपिंग. ठीक है, ए एंड बी में कुछ ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई इंटरसेक्शन नहीं है. ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, अब जब कोई भी प्रोबेबिलिटी का सम होता है, मैं आपको ऑलवेज आई टेल यू कि आपने वेन डायग्राम बनाना है. यू आर गोइंग टू मेक अ वेन डायग्राम सो दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज द सम बेटर, एंड उससे आपको इजीली समझ आता है आपको करना क्या है. How do you get to the answer? So let's make a Venn diagram. ठीक है, अब ये आपका यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. अब आपका A है ये. अब because we have said that they are mutually exclusive, we cannot overlap the two events. ठीक है, and B is this. We are not going to overlap these two particular events. ठीक है, they will be different. They will be separate from each other. राइट अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ नीदर ए नॉर बी विल अकर. मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ना इसमें फॉल होनी चाहिए ना इसमें फॉल होनी चाहिए. सो लीविंग दिस पर्टिकुलर सर्कल ऑफ ए एंड दिस पर्टिकुलर सर्कल ऑफ बी, जितना भी लेफ्ट ओवर पार्ट है, all the part that is left over leaving the circles A and B, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, you understand that the shaded part, everything aside of these two circles which basically represent the A and B events, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है. तो अगर आप इन दोनों सर्कल्स की बात करो, ये क्या प्रोबेबिलिटी देते हैं, P A यूनियन B, राइट. अगर आप इन दोनों सर्कल्स की बात करो, इन दोनों इवेंट्स की जॉइंटली बात करो, और उसकी सपोज अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट विल बी गिवन बाय दिस P A यूनियन B. But because the question is asking you the probability of neither A nor B, so you will have to find out 1 minus P A union B. ठीक है, आपको P A union B की नहीं निकालनी, आपको 1 minus P A union B की निकालनी है, because you have to find out the shaded part. ठीक है, this part, the part leaving these two circles in the universal set, उस पार्ट की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड, है ना. तो उसके लिए पहले आपको P A यूनियन B की वैल्यू पता होनी चाहिए. अब P A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस, अब 1 माइनस 1 आई एम राइटिंग ये वाली चीज. अब मैं फॉर्मूला जो है A यूनियन B का ब्रैकेट में बता रही हूँ आपको. P प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस P A इंटरसेक्शन B. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट टॉक्स अबाउट द P A यूनियन B. ठीक है, तो अब आपको मैंने बता दिया कि P A इंटरसेक्शन B तो होएगा ही नहीं, बिकॉज A and B आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, विच बेसिकली मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, राइट. अब बचा क्या आपके पास, P A and P B. You have to just put in the values of
probability of A and probability of B to find out PA union B. Let's do that. 1 minus, what is the probability of A? 1 by 5 plus probability of B is 1 by 3. Let's solve it. 1 minus, when you solve it, what do you get? Right? 1 minus 8 by 15. When you do that, you get 7 by 15. This is what your answer is. And what is the option? Option number 3. So the probability of neither A nor B is 7 by 15. Right? I hope you understood this. Let's move to the next question. Okay. So with that, we have come to the end of this particular lecture. And if you learned something today, do like the video. And if you have anything to share with us, any comments, any feedback, do share that in the comment section. We absolutely love to hear from you. And if you haven't subscribed to the channel yet, this is the time to do so. I'll see you in the next lecture with the next set of PYQs. And with that, please stay curious and keep learning. Wishing you all the very best.